दीप्ति तेरे रोदा खिला सबसे तेरा खाले मेला दीप्ति तेरे रोदा खिला सबसे तेरा खाले मेला गाने रताने डोली Kibo, Pami,
পারদর্শী করি ললিতা সুন্দরী আমারে লইয়া কবে
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সাহিতে অযুগল মিলন সুখের কারণ জীবন চারিতে পাই যুগল শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে রাধিকা চরণ দাজিয়া আমার কনকে পলায় তরে শতবার মরি সে দুঃখ আমার শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সাহিতে রাধারা চরণ যুগলে পরিচয় পাব মহাব্রজ জয়া করি কবে ভজবনে লোভে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সাহিতে অভিলাষ মঞ্জরি অনঙ্গ মঞ্জরি শিরূপ মঞ্জরি আমাকে তুলিয়া রহলিকা পদে দেহ মোরে শিশা
मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा चरणों से कुटाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा दुनिया में झूठे किशोरी तेरे करते आ गया महारानी, तेरा धरानी किशोरी बोला की राधा श्री राधा
ऐसे बोलता ठाकुर जी ने एक बार रात्रि से बात दोनों हाथ आके किशोरी इतना तो की जो तालियां रात्रि इतना तो की तो Bye.
गुरवे गुरुचन्द्राय रधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शारण्यं भक्तबान्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णामृतदास्यं प्रदायकं रूपानुगाचार्यवरं गुरुपमञ्जरिप्रेष्ठकम् पतित पावन करुणियां युगाचार्य नारायण
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Guru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So first of all I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradhatama Sri Guru Pada Padma Nitya Lila Praveshta Om Vishnu Pada Prahamsa Paribrajagacharya Ashtottara Sadhya Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev, and to my most worshipable Shikshan Sannyasa Guru Nitya Lila Praveshta Srimad Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, held by Pujapada Madhava Priya Prabhu, my humble obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudev and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. So, Srila Rupa Goswami Pad, in his Padavali, he is praying that may that thief, that butter thief, always protect me. So he is praying that Krishna, who is known as the butter thief, the Makhan Chor, always protect us. So Krishna's buttery stealing pastimes are very sweet, and they are full of laughter, full of joy. So one time Krishna, he was outside on the courtyard. It was night time. Yashoda kept him there playing while she was doing some work, and there were some elderly gopis around watching him. Then Krishna, he is staring at the moon and he is restless, and he begins to cry and to hit on the ground, to kick and punch the ground by saying, I want that. Then some gopis came and asked, Lord Krishna, what happened? What do you want? I said, I want that butter. And the gopi said, no, Krishna, that's not butter. Actually, that is a swan, the big swan. He says, swan? Okay, bring that to me, I want to play with it. And the gopis, they thought, oh no, that's much difficult. Let me call Yashoda to solve this matter. Then Yashoda came and said, Lala, what happened? Why you are so upset? Say, no, I want to play with that swan. And Yashoda said, no, Lala, this is not a swan. Actually, this is called moon. Moon? No, that is butter. I want that butter. Say, no, Lala, this is not butter, this is not swan, this is moon, and you cannot have it. Then Krishna was insisting by saying, no, I want that butter. And then Yashoda said, look, Krishna, okay, that is butter. But that butter is poisonous. You see those black spots? So that is poison. Then Krishna said, but how possible poison in milk? Butter is made out of milk. So how possible milk has poison? Then Yashoda said, yes, Krishna. There was a time when the demons and the demigods, they churned the milk ocean. And out of that ocean, a lot of poison came. Very strong poison came out. Then Krishna was thinking, Mother, how many cows are needed to make this milk ocean? Then Yashoda smiled and said, no, Lala, this milk is not made by cows. And Krishna said, how is it possible? Milk coming without cows? Then Yashoda said, Lala, that same person who gave the cows power to produce milk can make an ocean of milk without a single cow. Then Krishna was asking, but who is that person? And Yashoda said, oh, that is the Supreme Lord.
He can do anything. And Krishna is saying, oh, but anyhow, I thought that only snakes have poison. So how is possible that this milk has poison? Then Yashoda is saying, no, Lala, actually, the poison first appeared in milk, later it came to the snakes. Because when Lord Shiva, he was drinking all the poison coming from the milk ocean, some drops came out, and the snakes around his neck, they quickly drank that. So therefore they became poisonous. And Krishna is saying, oh. But anyhow, if I cannot eat that, then what can I eat? Then Yashoda is saying, I prepared so much sweet, soft butter to you. You can take that. And Krishna is saying, no, mother, now I am very tired, I am sleepy. I want to sleep. So then Krishna, he fell asleep. The next morning, Yashoda, she is waking him up. Say, Lala, wake up. I brought very sweet butter for you. Then Krishna, he woke up very angry and say, Mother, I don't want to eat anything that you are giving me. Because last night you spoke so long katha and you lied to me about so many things. Then I went to sleep hungry. Then Yashoda say, oh, you went to sleep hungry. Then who stole the butter from the kitchen? And Krishna say, I did not steal any butter. Say, yes. You check your cheeks. You see, this is the evidence that butter is on your cheeks. Then Krishna say, oh, just because you see butter on my cheeks, this means evidence. Then Krishna, he took some butter and he put on Yashoda's cheeks and say, you see, you also have butter on your cheeks. So this is evidence that you might have stolen this butter. Then Yashoda, she will say, okay, Lala, so please come, I will give you this butter. So, in another occasion, Yashoda, she was complaining that she was chastising Krishna. She was saying that, my son, I don't know what I have done for you to go every day to the Gopi's house and steal butter. Every day, some Gopi come and complain to me that not only were you stealing butter, but you are also breaking the pots, you are also inviting your monkey friends, the pigeons and the mongoose, and making a big mess in their kitchen. And not only that, sometimes even you are pinching their babies and making them cry. Sometimes you are passing urine on the floor. So what type of behavior is this? Why are you doing all these things? Then Krishna say, Mother, I never stole butter. How is it possible? Early morning you sent me to Madhuvan for cow grazing, and I'm staying there with my friends, grazing the cows. Then afternoon I'm coming back home, very hungry to eat. I eat everything you give me. How can you say that? How dare you say that I have taken butter, I am stealing butter? Then Krishna say, look, actually I am no longer your son. Because you cannot accuse me like this. If you think I am a thief, if you accuse me of theft, then I am not your son, and because of that I am going out of this house. Oh, when Yashoda, she heard that, her heart became very heavy, and then she begins to, think about, oh my God, what I have done. Then she covered her face with a hand, and she begins to sob, and she say, oh Krishna, I'm sorry, I have done wrong with you. Definitely you did not steal any butter. Please don't go. Then when Krishna saw that how Mother, she was emotional, she was moved by that, he thought to himself, oh my God, I have to tell the truth. Then he say, Mother, I will confess. Actually, I stole butter. Then Yashoda say, no, Krishna, you haven't stolen any butter. Krishna say, no, Mother, I stole. Yashoda say, no, you haven't. Krishna say, no, I did. I am telling you, I stole butter. Then Yashoda embraced him and said, Lala, let us forget all these things. I know that you haven't stolen butter. Then Krishna embraced her very tight and whispered on her ears, Mother, I stole, I did it.
So in this way, so many sweet pastimes of Krishna stealing water. So just before concluding, a couple of minutes left. You know, Vrindavan is a place of controversies. Vaishnava world is a world of controversies. Devotees love some controversies. But the thing is, in Vrindavan, all the controversies, they are very sweet. They are very uplifting. They are not make anyone to feel sad. So one day, the Sakhas, they were grazing cows. And Krishna has left them. And then one Sakha, he raised a question. He said, my friends, is Krishna a Gopa or a Vanachari? Means is Krishna a cowherd boy or a forest dweller? I am actually doubting that Krishna is a Gopa. Just think with me. Gopa is that person who lives in the village, who takes care of the cows for the whole day, who behave in certain way like that. We're always in the cows. But what Krishna does, as soon as he arrives in the forest, he tells us, you please take care of the cows. I'm going to see the beauty of the forest. And you know what he does? He goes to meet with our sisters. And you know what they do? They decorate themselves with forest flowers. So when Krishna comes back, he is totally decorated with forest flowers in his ears, in his hair, with garlands, on his waist, everywhere he's decorated with forest flowers. So then he comes and takes cows back home with us. Then quickly he's milking one cow. He's going to take bath, and after taking prasadam, he's just going to sleep. But what he does, he's only pretending to be asleep. After 1 hour, he's jumping from the window and again going to the forest. And there only he stays for the whole night, doing God knows what. So just before sunrise again, he's back home. For a few minutes, he's going to take some nap and pretend to be asleep. Then Yashoda is calling him, preparing him, sending him back to forest. And he's doing this every day. So actually Krishna, he is using his house in the same way that an actor uses the dressing room. He just goes there for a few minutes, but most time he's spending on the stage. Means Krishna spends most of his time in the forest. Then another Sakha said, no, how can you think like so? His name is Gopala. His name is Govinda. He's the caretaker of cows. He's the protector of cows. And as far as we know, we belong to the Gopa dynasty. So we are all Gopas. And then, after this doubt raised, then Krishna arrived, covered with forest flowers. Then everyone is silent. Just like, you know, when you're talking about someone and that person enters in the room, suddenly becomes a force like silence. Then Krishna is asking, about whom are you talking about? And the Sakhas, they thought for a while. They say, about you, of course. We always talk about you. We have no other subject. We are always talking about you, how we love you, how you are our dear friend, like this. So in this way, this doubt came in the Sakha's mind. Either Krishna is a Gopa or a Vanachari. So now I am asking you, what do you think? Those who think that Krishna is a Gopa, please raise your hands. Nobody thinks Krishna is a Gopa, okay? Dr. Karthik is saying? Prabhuji also? Okay, those who think that Krishna is a Vanachari, please raise your hand. Okay, those who think is both. Okay, good. Alright. So now let us see what Krishna himself, what Krishna says about himself. So in Srimad Bhagavatam, in Govardhan Lila, Krishna is telling to Nanda Maharaj, Nanda, Baba, actually we are not inhabitants of the village or the towns. We are actually inhabitants of the forests. We are forest dwellers. We depend on the fruits, grasses, trees, everything that forest provides us, especially what Govardhan provides us. Also in Ananda Vrindavan Shapushla Kavikanapur, he says that Krishna, he doesn't like much all the ornaments that Yashoda gives him.
all these expensive jewels and bangles and all this, cloth like that. He likes actually to be dressed with the forest, elements, with the forest decorations and alankars. That is how he is actually feeling very much pleasurable. So actually, what Srila Gurudev says, that actually Krishna's cow-grazing pastime is actually an excuse. He uses this as an excuse actually to be able to meet with the gopis in the forest. So he is not actually a real gopa, in fact, from heart. He is a gopa externally speaking. Because you see in Brajalila, there is one platform that you establish one truth. But again, you will contradict that platform and establish another truth, which is opposing to that. This is how Leelas are actually working, in Braj especially. So in the same way, Krishna, he is setting the platform as a gopa, but in fact, he is a forest dweller. So that is why Srila Bhaktivinoda Thakur, he is singing this beautiful song, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Channa Vallabha Giri Bharadhari, Jashoda Nandana, Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira, Vanachari. So Krishna, he is a Vanachari. So in this way, actually, we can see Krishna in so many different ways, of course. That will depend on your bhav, on your means a devotion towards him. But for the sake of these Madhura Lila pastimes, Krishna, he is definitely a forest dweller. Bolo Vrindavana Vihari Lal ki Jai Jai Sri Radhe Sham Vanchar Bhavatir Vishnu Sindhu Titana Bhava. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आज श्री चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर श्री नरहरि सरकार ठाकुर, आज उनकी तिरोभाव तिथि। भगवान और भगवान के परिकर समय समय पर कभी किसी ब्रह्मांड में, कभी किसी लोक में अवतरित होते। भगवान ने स्वयं ही अपने ये वाले वचन जो हैं भगवद गीता में बतलाए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, मैं क्या करता हूं, समय समय पर युग युग में अवतरित होता। भगवान अकेले अवतरित होते नहीं, भगवान अपने परिकरों के साथ में आते हैं। जैसे साधारण रूप में कहते हैं, प्रधानमंत्री इस देश में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस देश में जा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री अकेले जाते हैं? कभी भी अकेले नहीं जाते, बहुत सारे लोगों को साथ लेके जाते हैं। किंतु क्योंकि वो सबसे प्रधान है, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। इसी तरह से भगवान जब अवतरित होते हैं, उनके साथ में उनके बहुत सारे परिकर गण ही अवतरित होते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सरल शब्दों में बता दिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी स्वापशद स्वीय धाम सहा अवतारी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, जीवों के ऊपर दया करने के लिए
श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर अवतरित हुए, स्वपार्षद स्वीय धाम, अपने पार्षदों को भी साथ में लाते हैं और अपने धाम को भी साथ में लेकर के आते हैं। स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, उनके साथ में ही अवतरित होते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण ही अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उनके और परिकर जो हैं वो भी सारे आए साथ में। यशोदा माता जो हैं वो शची देवी के रूप में, नंद बाबा जो हैं जगन्नाथ मिश्र के रूप में, बलराम जी जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में, और नारद ऋषि श्रीवास पंडित के रूप में। ऐसे करके बहुत सारे परिकर गण, ललिता सखी शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद प्रभु, विशाखा सखी, ये सारे के सारे परिकर कृष्ण के ब्रज में जो हैं वो सारे कहाँ पर प्रकटित हो गए? चैतन्य महाप्रभु के समय में भी स्थान स्थान पर प्रकटित हो गए। उन्हीं में से ही एक परिकर हैं जिनका नाम क्या है? श्री नरहरि सरकार ठाकुर। भगवान के कितने परिकर होते हैं? भगवान के पार्षदों की संख्या कितनी होती है? धीरू प्रभु, अनगिनत। भगवान के पार्षद बहुत सारे, उनका गिनती नहीं किया जा सकता, अनगिनत पार्षद है। उनमें से कुछ मुख्य जो पार्षद होते हैं उनके नाम ही हम लोगों को पता चल जाते हैं, स्मरण रहते हैं, बाकी सबका हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए ये लोग कहाँ से आते हैं? गोलोक वृंदावन से। जब भगवान नारायण आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वैकुंठ से। जब भगवान रामचंद्र आते हैं अपने परिकरों के साथ, वो आते हैं साकेत धाम से। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, ये आते हैं श्वेत द्वीप से। भगवान के वैकुंठ जगत में अपने अपने लोक हैं, वहां से आते हैं। तो जब भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब महाप्रभु तो है राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप। और जो ये नरहरि सरकार ठाकुर हैं, ये कौन है? ये राधा रानी की एक सखी हैं जिनका नाम है मधुमती सखी। वो मधुमती सखी जो है नरहरि सरकार के रूप में प्रकटित हुए। हम लोग कहाँ से आते हैं? वो भगवान के परिकर हैं। हम लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये वाले कीर्तनों में प्रश्न पूछते हैं कि आमी केनो जे ऐसे छिए खाने, यही कथा आमी कखनो नहीं भावी मने। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? ये वाली बात अधिकांश लोग कभी सोचते ही नहीं है। हम लोग इस जगत के प्रोडक्ट नहीं हैं। हम लोगों का उत्पत्ति दिखाई दे रहा है केवल यहाँ पर, किंतु हम यहाँ के हैं थोड़ा ना। हम लोग कहाँ के हैं? हम लोगों के लिए बताया, जीव जो है कृष्णेर तटस्था शक्ति, हम भगवान की तटस्था शक्ति के अंश हैं। तटस्था शक्ति कहाँ पर रहती है? गोलोक वृंदावन वैकुंठ, उसके बीच में है तटस्था शक्ति, उससे नीचे है ये वाला जगत। तट किसको कहते हैं? जैसे नदी का तट, एक तरफ जल है, एक तरफ स्थल है, बीच में तट है। इसी प्रकार से भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम तटस्थ शक्ति। हम लोगों का उत्पत्ति वहां से होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर तो केवल दिखलाई पड़ता है कि इस माता पिता से जन्म हुआ, इस स्थान पे जन्म हुआ, किंतु हम हैं कहाँ के? हम भगवान की शक्ति जो है तटस्थ शक्ति, वहां से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। तो इसीलिए जो भगवान के परिकर गण, ये भी अलग स्थान के हैं, केवल यहाँ पर आकर के प्रकटित होते हैं। हम लोगों का स्वरूप क्या है? जैसे अभी बता रहे नरहरि सरकार जो है ये मधुमती सखी हैं। हम लोगों का क्या स्वरूप है?
हमारी आत्मा का अपना एक स्वरूप है। उसका अभी मेरा नाम पहले घर पर कुछ और था, फिर पिताजी किसी और नाम से बुलाते थे, माताजी किसी और नाम से बुलाते थे, विद्यालय में और नाम लिखा हुआ था। फिर जब मंदिर में आ गए तब अलग नाम दीक्षा का हो गया। तो व्यक्ति एक होने पर भी मेरे नाम यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, किंतु मैं और अगर मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद ये वाले सारे नाम तो गुम जाएंगे। फिर मेरा जिस योनि में जिस जगह पर जन्म होगा वहां पर कोई और नाम होगा। मनुष्य बना तो कोई नाम रखेंगे, पशु हुआ तो एक ही पशु रह जाएगा नाम की ये वाली योनि का पशु है। किंतु शरीर चाहे मेरा पशु का हो, शरीर चाहे मेरा मनुष्य का हो, किंतु मेरी आत्मा जो है उसका अपना नित्य नाम है, नित्य स्वरूप है। जब भगवान ने मेरे को बनाया है उस समय मेरे को नाम भी मेरे को मिला हुआ है। अभी मेरे नाम वाला जो है ढक गया, छिपा हुआ है। मेरा अपना एक स्वरूप है, मेरा अपना सेवा है, मेरा अलग वास स्थान है। सारी चीजें भगवान ने निर्धारित की हुई हैं। जिस समय मैं शुद्ध रूप में भजन करते करते मेरा चित्त स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाऊंगा, शुद्ध भजन करूंगा, तब भगवान की कृपा से मेरे को अपना वो वाला स्वरूप दिखलाई देगा। भगवान दिखलाई देंगे, भगवान के परिकर दिखलाई देंगे, कण कण में दिखलाई देंगे। तो इसीलिए नरहरि सरकार जो है ये कौन है? राधा रानी की सखी मधुमती इस जगत में प्रकटित हो गए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? श्री नवद्वीप धाम के पास में एक स्थान है जिसका नाम श्रीखंड। श्रीखंड में इनका शुभ आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इनका पूरा परिवार जो है वो कौन थे? ये लोग वैद्य कुल में इनका जन्म हुआ था। और ये 3 भाई थे। तीनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त। इनके सबसे बड़े भाई जो है उनका नाम था मुकुंद। इनके दूसरे वाले भाई उनका नाम माधव, और ये थे तीसरे नंबर के श्री नरहरि सरकार। इनको पढ़ने के लिए भेजा था नवद्वीप धाम में श्रीखंड से। श्रीखंड से पढ़ने के लिए गए थे नवद्वीप धाम में। और ये राधा कृष्ण के पहले से ही बहुत अच्छे भक्त थे। राधा कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। इनके ये जो है ग्रंथ भी इन्होंने पहले से लिखे थे। कुछ राधा कृष्ण की स्तुतियां भी लिखते थे। इस प्रकार से इनका जन्म था। इनके लिए बताया कि इनके शिष्य एक हुए विशेष प्रधान शिष्य श्री लोचन दास ठाकुर। लोचन दास ठाकुर अपने गुरु नरहरि सरकार के विषय में बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव कैसे वाले थे। उसके लिए बताते हैं कि महाकुल प्रभाव इनका जो कुल है, माता पिता भाई बंधु ग्राम के लोग सारे लोग बहुत पवित्र जीवन जीते थे। इसलिए इनमें बड़े अच्छे संस्कार सारे वाले आए थे। फिर अनर्गल कृष्ण प्रेम कृष्णमय तनु, ये संसार की बहुत सारी चीजों के विषय में, किसी चीज के विषय में चिंता ही नहीं करते थे। अनर्गल निरंतर कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। भगवान की बातें सुनते थे, भगवान की बातें कहते थे, भगवान की सेवा करते थे और दर्शन करते थे, भक्तों के साथ बैठते थे। ये सारा इनका जीवन था। अनुगत जने ना बुझान प्रेम बिनु, अपने जो भी इनके अनुगत होता था, साथ में रहता था, इनका शिष्य बनता था, उसको ये क्या करते थे सब समय? शुद्ध प्रेम किसको कहते हैं? इस संसार में जो प्रेम है ये नाम मात्र का प्रेम है, दिखावटी प्रेम है, स्वार्थ वाला प्रेम है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यूर बैक। आप मेरे लिए कुछ मेरे सुख के लिए काम कर दो, तभी मैं भी आपके सुख के लिए कोई काम कर दूंगा। इसी को यहाँ पर प्रेम कहते हैं। अगर आप मेरे लिए नहीं करोगे कुछ भी तो तुम मेरे किस काम के? तुम भी अपना रास्ता नापो। यहाँ पर उस तरह से हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेम नहीं है। प्रेम किसको कहते हैं?
प्रेम कहाँ पर वास करता है, किस प्रकार से भगवान में उनके परिकरों में शुद्ध प्रेम होता है, वो प्रेम कदापि कम होता नहीं, सदैव वर्धित होता है। प्रेम जो है वो किसी वस्तु की आशा नहीं रखता, वो केवल संपूर्ण रूप में अपने आप को देता है। इस प्रकार का जो शुद्ध प्रेम, ब्रज का प्रेम, उसकी बातें नरहरि सरकार सब समय करते थे। उसके अतिरिक्त उनके मुख से कोई और चीज निकलती ही नहीं। प्रेम अनुगत जने ना बुझान प्रेम बिनु, प्रेम के बिना और कोई बात नहीं करते थे। और इनके लिए बताया ये कौन थे? भक्ति रसज्ञ। भक्ति रूपी, भक्ति में रस है, भक्ति में आनंद है। वो आनंद कैसे प्राप्त होता है, उस आनंद में कैसे डूबना होता है, वो अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो भक्तिमयी ऐसी वाली क्रियाएं करते थे, और जहां पर जो लोग करते थे उनके साथ में रहते थे। इनको पता चलता था बड़ी अच्छी तरह से कहां पर भक्ति के नाम पर केवल कपट है, ढोंग चलता है, केवल दिखावटी भक्ति है, और कहां पर शुद्ध रूप में हृदय से भक्ति है। इसीलिए जहां पर शुद्ध रूप में होती थी वहीं पर ये क्या करते थे? सब समय भाग लेते थे। और जहां पर शुद्ध भक्ति करने वाले लोग नहीं होते थे उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। राधा गोविंद की से लीला, राधा गोविंद से संबंधित लीला सूचक पद लिखते थे। और फिर बताया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर के रूप में इनकी विशेष सेवा क्या है? चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। इनकी सेवा क्या है? नित्य श्वेत द्वीप में महाप्रभु के राधा कृष्ण की लीला में मधुमती सखी के रूप में सेवा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की सेवा लीला में क्या करते हैं? वहां पर नरहरि सरकार के रूप में इनकी मुख्य सेवा है चामर व्यजन। भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को चामर डुलाना, ये उनकी सेवा है। इसलिए गौड़िया भक्त लोग जब उनकी सिद्धि होती है, हम लोग जिस दिन भी भगवान के धाम में जाएंगे, सिद्धि की प्राप्ति करेंगे, जिस दिन वो शुभ दिन आएगा, हमारे को कहाँ पर हमारा स्वरूप होगा? हेताए चैतन्य मिले सेता राधा कृष्णा। एक हमारे को राधा कृष्ण की लीला में स्वरूप मिलता है, और दूसरा स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की लीला में मिलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये कौन सी सेवा करते हैं? चामर व्यजन की। ये इनकी निर्दिष्ट सेवा है। इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या लिख दिया? नर हरि आदि करी चामर ढुलाए। शाम को आरती करते हैं हम लोग, संध्या आरती चैतन्य महाप्रभु की कौन सी वाली? कि वह जयो जयो गौरा चांदिर आरती की शोभा। जो ये आरती करते हैं उसमें क्या आ जाता है? फिर बोलते बोलते नर हरि आदि करी चामर डुलाए, संजया मुकुंद आदि वासु घोष आदि गाए। कि नर हरि सरकार उस समय क्या करते हैं? ये चामर डुलाते हैं। इनकी ये नित्य सेवा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको स्वप्न दिया था। जैसे अब हमारे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है ना, ब्रज, यहाँ पर राधा कृष्ण का भी विग्रह है। कृष्ण की मूर्ति को, कृष्ण के विग्रह को सबसे पहले किसने बनाया था? कृष्ण की मूर्तियां अभी तो सारे संसार में जगह जगह पर है। सबसे पहले किसने बनाया था? कृष्ण के प्रपौत्र, मतलब पोते के पुत्र, उनका नाम था वज्रनाभ। वो आए थे मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज में। उन्होंने गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और हरिदेव जी गोवर्धन में, और मथुरा में केशव देव जी, और बलदाऊ में ताऊ जी महाराज, ये सारे विग्रह किसने बनवाए थे? वज्रनाभ जी ने बनवाए थे। फिर बाद में एक एक करके और विग्रह प्रकटित होते गए। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के विग्रह सबसे पहले कहाँ पर बने? उनके परिकरों के माध्यम से। ये विग्रह जो है ये ऐसे कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। विग्रह नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान वहां पर विराजित हो।
इसीलिए ये जो नरहरि सरकार इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के 3 विग्रहों को प्रकटित किया था। एक श्रीखंड में सेवित होते हैं, दूसरा कटोया नामक स्थान पर और तीसरा गंगा नगर में। इस प्रकार से इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों को भी प्रकटित किया था। जब चैतन्य महाप्रभु ये जगन्नाथपुरी में रहते थे और भक्तों के साथ में नरहरि सरकार भी सब समय आते थे जगन्नाथपुरी में। और एक बात उनकी लिखी, चैतन्य गण सब चैतन्य जीवन, ये चैतन्य महाप्रभु के प्राण स्वरूप थे। महाप्रभु इन भक्तों को, अपने परिकरों को इतना अधिक प्रेम रखते हैं, उनके प्रति इतना स्नेह करते हैं, बार बार बोलते थे कि ये लोग कौन हैं, ये मेरे प्राण हैं, ये मेरे प्राण हैं, इस प्रकार से। और नरहरि सरकार रथ यात्रा के समय में महाप्रभु के कीर्तन में आनंद पूर्वक नृत्य करते थे, बहुत बहुत देरी तक। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ये 3 सदस्य थे घर में, एक मुकुंद, एक रघुनंदन, तीसरे नरहरि। इन तीनों को एक एक सेवा दी थी महाप्रभु ने कि सारे लोग घर में केवल मात्र पैसा कमाई करने के लिए नहीं लग जाना। केवल एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, मुकुंद, आप तो क्या करना, वैद्य का कार्य करके घर के लिए जितना धन की आवश्यकता धन उपार्जन करना। आपका जो पुत्र है रघुनंदन, इसको भगवान के विग्रह की सेवा करने का बहुत रुचि है, अच्छी तरह से सेवा करता है भगवान की, इसलिए इसको सब समय किस में लगे रहने देना, भगवान की सेवा में। भगवान को उठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, आप केवल क्या करेंगे, इनको जो जो सामग्रियां चाहिए आप ला करके देंगे, आप सामग्रियां ला करके देना। और सेवा सारी कौन करेंगे, सुबह से शाम तक ये करेंगे रघुनंदन। और जो ये है नरहरि सरकार हैं, ये क्या करेंगे, नरहरि सरकार को सेवा दी थी भक्त साह अवस्थान। जो भी भक्त लोग आएंगे श्रीखंड में और जहां जहां पर भक्त रहेंगे, ये जहां पर भक्तों के साथ में रहना चाहें, इनको सब समय सुयोग देना भक्तों के साथ में रहने का। घर पे भी जब भक्त आए, इनको उनकी सेवा में, उनके साथ कथा कीर्तन में ही रत रहने देना। इसलिए 3 लोगों को, घर के 3 सदस्य, तीनों को अलग अलग सेवा दे दी। एक क्या करेंगे, धन उपार्जन, दूसरे क्या करेंगे, भगवान की सेवा, तीसरे क्या करेंगे, भक्तों की सेवा। इस नरहरि सरकार को महाप्रभु ने सेवा दे दी थी कि ये भक्तों की सेवा करेंगे। जब श्री नरहरि सरकार ने आज के दिन में संध्या के समय में, ऐसे लिखा हुआ, एकादशी के दिन में, कल जो चली गई एकादशी, उस दिन इनकी तिरोभावती थी। आज के दिन में विरह महोत्सव इत्यादि हुआ था। और जिनका तिथि एकादशी में होता है, विशेष करके उनका तिथि द्वादशी में पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि अन्न इत्यादि के साथ में ही जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि है, अन्न के साथ में संपूर्ण होता है। तो इसीलिए आज के दिन में इनका तिथि का पालन किया गया। और उसमें श्रीनिवासाचार्य प्रभु आए थे, बहुत बड़े भक्त, उन्होंने सारी इनके महोत्सव की सारी व्यवस्था की थी। वहीं पर नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र प्रभु आए थे। इस प्रकार से बड़े सारे वैष्णवों ने आकर के इनका जो विरह महोत्सव मनाया था। इसी से ही पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े भक्त, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। श्री नरहरि सरकार हमारे प्रति कृपा करें, उनके श्री चरण कमलों में पुनः पुनः यही प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री नरहरि सरकार की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जिसको जल्दी हो वो लोग अपना 1 मिनट दीपदान करके फिर नीचे प्रसाद के लिए साथ साथ जा सकते।
बोलो श्री श्री राधा दामोदर जू की जय, श्री श्री राधा माधव जू की जय, श्री श्री राधा विनोद बिहारी जू की जय, श्री श्री राधा रमण बिहारी जू की जय। नमस्कार सच्चिदानंद रूपा या सद्गुणदारा गोकुल Namo Devataya Namo Devataya